سب سے پہلے تو اقوام متحدہ میں پاکستان جو لے کے گیا سیکیورٹی کونسل کے اندر اس مدعے کو اور وہاں پر ڈسکس بھی ہوا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں سفارتی کامیابی ہے اور پاکستان صحیح طرح سے پریزنٹ کر رہا ہے اپنے اس کیس کو؟ جی شکریہ۔ ابھی تک تو بظاہر یہی لگتا ہے، لیکن ابھی ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل ایکٹیو نظر آتی ہے، یو این سیکریٹری جنرل کا بیان نظر آتا ہے کہ دونوں سائڈز جو ہیں وہ ریسٹرین شو کریں، میکسیمم ریسٹرین شو کریں۔ اس کے علاوہ ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستان کا دورہ اور دیگر ممالک سے رابطے، ان ممالک کا انڈیا سے رابطہ، یہ ساری چیزیں آپ کے ڈپلومیٹک انیشیٹو کی بنیاد پر ہی ہوئی ہیں۔ تو اس حد تک تو یقینی طور پہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں پاکستان کو اطمینان ہونا چاہیے کہ جو دوست ممالک بھی ہیں، اقوام متحدہ بھی ہے، وہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ لیکن ابھی تک ہمیں بظاہر یہ نظر نہیں آیا کہ جو انیشیٹو ہماری طرف سے لیا گیا ہے، کیا اقوام متحدہ یا امریکہ یا دیگر ممالک جو ہے وہ انڈیا سے بھی اسی طریقے سے رابطے میں ہیں، اور جو کہ کچھ خبریں تو یقینی طور پہ آئی ہیں، لیکن انڈین پوزیشن میں بظاہر کوئی فلیکسیبلٹی ابھی نظر نہیں آ رہی، اور ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ یہ کس حد تک صورتحال، بلکہ یہی کہنا چاہیے کہ صورتحال اس سے زیادہ سنگین نہ ہو، اس لیے کہ جنگ بہرحال آپ کے اوپر اگر مسلط کی جاتی ہے تو ظاہر ہے پوری قوم متحد ہے، لیکن ساری کوشش یہی ہونی چاہیے آخر دم تک کہ جنگ نہ ہو، اس لیے کہ الٹیمیٹلی جنگ دنیا کا زیادہ فوکس بھارت کی طرف ہونا چاہیے۔ ایک تو بھارت اوبویسلی اپنے سائز میں، اپنی مائٹ میں بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے علاوہ ان کی آبادی بڑی ہے، ایک بڑا ملک ہے کمپیریٹیولی پاکستان کی نسبت، اور دوسرا ایسکیلیشن بھارت کی طرف سے ہو رہی ہے، فالس فلیگ بھی بھارت کی طرف سے ہوا ہے۔ تو ڈونٹ یو تھنک کہ دنیا کا زیادہ فوکس، اگر دنیا واقعی چاہتی ہے کہ اس خطے میں ہم رہیں اور دنیا میں ہم رہیں، تو زیادہ فوکس بھارت کی طرف ہونا چاہیے دین پاکستان؟ دیکھیں یہی آپ کے سوچنے کی بات ہے نا کہ کیا آپ اپنا موقف کنونسنگلی دنیا کو بتا پائے ہیں اور دنیا اس سے کنونسڈ ہے یا نہیں ہے، اور وہ جو پوری دنیا ہے وہ انڈیا کے حوالے سے یا اس واقعے کے حوالے سے کتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ابھی تک ہمیں جو ایک پیش رفت نہیں نظر آتی وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن کی پیشکش، یعنی انٹرنیشنل میڈیٹرز کا بیچ میں پڑھنا اور کوئی اس طرح کی انویسٹیگیشن میں شامل ہونا ان کا، چاہے آپ شامل ہو نہ ہو، لیکن اگر کوئی انٹرنیشنل یو این وغیرہ کے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹرز اس کا حصہ بنتے ہیں تو بھی آپ کے لیے ایک پازیٹیو سائن ہے اس میں۔ یہ یاد رکھیں، دیکھیے کہ اقوام متحدہ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے بدقسمتی سے وہ کوئی بہت اچھا نہیں ہے، جی ٹھیک ہے، اور ان دا ریسنٹ پاسٹ ہم نے غازہ کے مسئلے پہ دیکھا ہے کہ اقوام متحدہ نے قراردادیں بھی پاس کی، اقوام متحدہ نے فیصلے بھی کیے۔ یہ جو بھارت کے امریکہ کی جانب سے کوشش کی گئی تھی، ہمیں یاد ہے مارکو روبیو وزیر خارجہ جو ہیں امریکہ کے، انہوں نے پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی بات کی تھی اور بھارت میں بھی ان کی بات ہوئی تھی اس سلسلے میں۔ آپ کو لگتا ہے اقوام متحدہ تو بہت زیادہ پورا اثر نہیں رہا، ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں، امریکہ کی جانب سے کوشش کی جانا کہ کسی طرح سے ڈی ایسکلیٹ ہو، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی اسی چیز پر ہمیں الرٹ رہنا چاہیے۔ یہ یاد رکھیں کہ انڈیا، اسرائیل اور امریکہ کا ایک نیکسس ہے۔ انڈیا کی ہم یہ بات ہمیں تسلیم کرنی چاہیے کہ انڈیا کا جو ڈپلومیٹک انیشیٹو ہے اس میں، یعنی اس واقعے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، اس سے پہلے ماضی میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے تعلقات جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں، روس کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں، اور ایون چائنا کے ساتھ بھی ان کی ٹریڈ جو ہے وہ ریکارڈ ٹریڈ ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ جہاں تک اس واقعے کے حوالے سے پاکستان کی پوزیشن بظاہر بہت اسٹرانگ نظر آتی ہے، اور اس کی خود ایون انڈیا کے اندر یہ بڑے سنگین سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ انڈین گورنمنٹ خود اپنے لوگوں کو، ایون اپنی پارلیمنٹ کو کنونس نہیں کر پا رہی، ایویڈنس نہیں دے پا رہی اس واقعے کے حوالے سے کہ جس میں پاکستان کے ملوث ہونے کی بات کی جاتی ہے۔ وہاں یہی سوالات، دو ہی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ پہلے یہ کہ آپ ایکوزیشن پاکستان کو اکیوز کر رہے ہیں لیکن آپ شواہد نہیں دکھا رہے،
और दूसरे ये कि आप एक जंगी जुनून पैदा कर रहे हैं सूरत हाल में, और तीसरे ये कि ये संगीन सिक्योरिटी लैप्स है। तो ये 3 सवालात जो हैं जिसका इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट जवाब नहीं दे पा रही। और ये शायद मतलब पहली दफा है भी नहीं जी, ये पहली दफा है भी नहीं कि वो इस मामले में नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि सारी बात है उसके पीछे कुछ होता नहीं है, तो सबूत तभी होंगे जब कुछ होगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपकी इजाज़त से ये जो एक और फॉल्स फ्लैग तो इसको कह सकते, एक और उनकी जो साजिश नाकाम हुई है, हमारी फोर्सेस ने एक्सपोज किया है। बलूचिस्तान में एक बड़ी दहशतगर्दी का मनसूबा रिपोर्टेडली बनाया जा रहा है, जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस ज़राए हैं। मैं साहब थोड़ी सी खबर दे दूँ, देन मैं इस पर सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि जो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है, उसने गवादर, क्वेटा, खुजदार में दहशतगर्दी का मनसूबा रिव्यूवर्स नाकाम बनाया है, और जो BLA फितनतुल खारिज है वहाँ पे और गैर कानूनी दीगर अफगान हैं, उनको दहशतगर्दी की हिदायत जारी की गई हैं। रॉ ने कार्रवाइयों के लिए दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से भी जो मुतलका इलाके हैं वहाँ पे भिजवा दिया है, और चंद खुदकुश बमबारों को भी मुतलका इलाकों में रैकी करवाई गई है, और जो बमबार हैं उनको दहशतगर्दी में ओबियसली मोटरसाइकिल या किसी व्हीकल के इस्तेमाल के हवाले से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे पास। इस सूरत हाल के ऊपर जब भारत सिर्फ जो बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी को मज़र-ए-बासा मुतमईन नहीं कर पा रहा, ऐसे ऑपरेशंस वो पाकिस्तान के अंदर वंस अगैन प्लान कर रहा है, और वो करते भी रहे हैं इससे पहले। इसकी बड़ी ज़बरदस्त मिसाल कुलभूषण यादव है, तो इस पे भी दुनिया की आंखें नहीं खुलनी चाहिए। हाउ डू यू सी दिस? देखिए, हमारे जब हम इस तरह की जो चीज़ें सामने आती हैं, वो फिर आगे हमें बढ़ती नज़र नहीं आती। यानी अगर कुछ लोग ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है और जिस तरह के कहा जा रहा है, मुझे उसकी डिटेल्स का नहीं पता, लेकिन अगर उसमें कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ कॉन्स्पिरेसी अनर्थ हुई है, तो फिर उन लोगों का ट्रायल होना चाहिए और कन्विक्शन होनी चाहिए। हमारे यहाँ ये तो खबरें आती हैं कि ये, क्योंकि हमने कराची के कॉन्टेक्स्ट में बहुत मरतबा ये चीज़ें देखी हैं, लेकिन फिर हमें उनका ट्रायल और कन्विक्शन होती नज़र नहीं आती। तो जब आप किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं, और फिर जाहिर है जब आप इस तरह की चीज़ें, जैसे कुलभूषण यादव वाला वाक़या था, उसको हमने बहुत सक्सेसफुली जो किया, और वो बहुत बड़ा नेटवर्क था जो पाकिस्तान में था, उसको हमने पकड़ा भी, और कुलभूषण यादव आज तक हमारी कस्टडी में है, लेकिन उसके बाद हमें कोई और आगे की सूरत हाल नज़र नहीं आती। तो और दूसरी बात ये कि बलूचिस्तान का मामला जो है वो बहुत सेंसिटिव है जी। बलूचिस्तान में आपको एक नेशनल कंसेंसस की भी ज़रूरत है। बलूचिस्तान में जिस तरह इस वक्त इस वाक़े के बाद पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में अपोजिशन हो या हुकूमत हो, वो एक ज़बान नज़र आती है इस हवाले से। तो हमारे बहुत से ऐसे मामलात हैं, जैसे KP उठा लें, अफगानिस्तान से जो सूरत हाल है उसको उठा लें। ये वो चीज़ें हैं जो डिमांड करती हैं एक नेशनल कंसेंसस। वो नेशनल कंसेंसस हम उस तरीके से संजीदगी से डिबेट नहीं करते। इवन अगर पार्लियामेंट में डिबेट भी हो रही हो तो कोरम तक पूरा नहीं होता। आपने पार्लियामेंट की और नेशनल कंसेंसस की बात की मजहर साहब, तो ये जो सियासी जमातों को ब्रीफिंग दी गई थी, स्पेशली ये पहलगाम अटैक के बारे में और भारत की जो इस वक्त सिचुएशन है, उसमें PTI ने शिरकत नहीं की है। उनके इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं, और क्या जेस्चर जाता है आवाम के अंदर, क्या इम्पैक्ट जाता है इस तरह के फैसले का, स्पेशली जब ऐसी सिचुएशन हो, नेशनल सिक्योरिटी का मामला? देखिए, एक सूरत हाल डेवलप की जाती है ना, आप सिर्फ एक सूरत हाल को सामने रख के आप अपोजिशन के अपनी भी ग्रीवेंसेस है ना, वो इस मामले को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दी। लेकिन जब आप इस तरह के इजलास बुलाते हैं तो उसका एक माहौल वो होता है। तहरीक इंसाफ को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि उनका जो भी मौक़िफ़ है, वो मौक़िफ़ वो पार्लियामेंट के अंदर भी जाके दे सकते हैं। यानी वो बात जो वो पार्लियामेंट से बाहर ब्रीफिंग में देते हैं, वही बात वो अंदर जाके भी कर सकते हैं। तो बाद मामलात ऐसे होते हैं कि जिसमें अपोजिशन को इस चीज़ का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, और तहरीक इंसाफ को ख़ास तौर पे। लेकिन दूसरी तरफ भी जो गवर्नमेंट है उसे भी एक फलदार दरख्त की मानंद होना चाहिए। यानी आप बताएं कि पिछले कई हफ्तों से उनकी जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनकी बहनें आती हैं, उनको नहीं मिलने दिया जाता। कोई वजह तो हो ना मिलने की। यानी आप क्यों एक गैर जरूरी तौर पे खबर को बढ़ावा देते हैं? आप क्यों एक नॉर्मल मुलाकात को जो है वो रोक कर एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं? तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को भी अपने तौर पे बहुत रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है, खास तौर पे ऐसे माहौल में। ठीक, तो जब आप दिल बड़ा करने की जरूरत है बेसिकली इस तरह की सिचुएशन में। अच्छा, अब ये अवाम के अंदर मैं थोड़ा सा उस नुक्ता निगाह से आपसे बात करना चाहता हूँ। हम भी
आप डेफिनेटली कहीं जाते हैं तो यही सवाल होता है जी, जंग हो रही है नहीं हो रही है। अब तक आपकी क्या असेसमेंट है जिस तरीके से जिस तरह के इक़दाम भारत ने किए हैं, जिस तरह पाकिस्तान इंगेज कर रहा है? बज़ाहिर तो ऐसा लगता है जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि वॉर इज स्टिल देयर, अभी खतरा टला नहीं है। हमें तो लगता है कि भारत शायद अपना वक्त गेन कर रहा है, टाइम ले रहा है इस सारे ऑपरेशन को प्लान करने के लिए। ये उनके एनालिस्ट भी कह रहे हैं, अगर आपने थोड़ा फॉलो किया हो इंडियन मीडिया तो। आपका क्या टेक है इस पर? अब भारत वाकई टाइम ले रहा है और टाइम के बाद कुछ करेगा या नहीं? डिप्लोमेटिकली थिंग्स आर वर्किंग आउट। देखिए, भारत के पास चॉइस क्या है टाइम ना लेने, इसलिए कि भारत के पास एविडेंसेस तो है नहीं। जब आपके पास शवाहिद ना हो तो आप टाइम ही गेन करते हैं। अगर आपके पास उनके पास शवाहिद होते, उन्होंने फौरी तौर पे लोगों को गिरफ्तार कर लिया होता, पूरा एक जो ब्लैक एंड वाइट में चीजें सामने रख के कहते ये ओपन एंड शट केस है, दुनिया के सामने रख देते। लेकिन जब आपके पास नहीं होंगे शवाहिद, आप खुद अपने पार्लियामेंटेरियंस को वो शवाहिद नहीं दिखा रहे, ना बता रहे हैं, ना आपके पास वो शवाहिद नजर आते हैं, तो आप चीजों को जमा करने की कोशिश करते हैं ना। एक फेक स्टोरी को आप जब रियल स्टोरी बनाते हैं तो उसके लिए भी आपको तैयारी करने की जरूरत होती है ना। एक ख्याल मतलब ये भी है कि जी, एक ख्याल ये भी है, सॉरी टू कट यू, कि बिहार इलेक्शंस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि उनके अंदर जाया ही नहीं जा सकता ऐसा कोई एडवेंचर किए बगैर। आपका भी, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप देखते हैं सूरत हाल को। वी नो कि बीजेपी यूज़ करती रही ऐसी सूरत हाल को अपने सियासी मकासद के लिए। क्या वाकई अगर मोदी ऐसे किसी एडवेंचर के बगैर बिहार इलेक्शन में चले जाएंगे, व्हाट यू थिंक, उनके लिए ठीक नहीं होगा और इसके लिए वो शायद सिर्फ इलेक्शन के लिए ऐसा लाजमी करें? आपको क्या लगता है? देखिए, कोई भी चीज़ कर सकते हैं, हमें तो हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए और मेरा ख्याल है तैयार रहते भी हम, क्योंकि जाहिर है जंग के बादल अभी तक मौजूद हैं, छटे नहीं हैं। लेकिन जिस तरह आपने पहले कहा कि इंडिया जो डिले कर रहा है चीजों को, वो उसकी बड़ी वजह यही है कि एविडेंसेस नहीं है उनके पास। और आप नजर भी आ रहा है दे हैव नथिंग टू शो टू द वर्ल्ड। और जिस तरह से ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बात तो कर लेने दें, बात तो कंप्लीट कर दें। जी कंप्लीट कर लें मजहर साहब। मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ कि इस वक्त हमारे लिए जो है सबसे अहम वो है कि क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत को किसी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार कर सकती है या नहीं कर सकती। क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या यूएन जैसा इदारा जो है कोई अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम, फैक्ट फाइंडिंग टीम उधर भेजेगा या नहीं भेजेगा, और या सिर्फ डिप्लोमेटिकली डीएस्केलेशन पर हम जाएंगे। माफ कीजिएगा, क्योंकि हमारा इस वक्त इशू जो है वो महज डीएस्केलेशन नहीं है। ठीक है, हमारा इशू इस वक्त ये होना चाहिए कि ये जो वाकया जिसमें एक पूरा भारतीय मीडिया जो है वो वॉर हिस्टीरिया क्रिएट कर रहा है, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है जिसमें हर वक्त जंग के खतरात मौजूद हैं, जिस वाक़े को बुनियाद बना के ये सारा चीज किया जा रहा है, उस वाक़े के रूट्स तक पहुंचना इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। ये हमारा फोकस होना चाहिए। सही। और अगर दुनिया मजीद खामोश तमाशाई बनी रहेगी तो हाँ, महज इल्जाम से नहीं होगा। और अगर खामोश तमाशाई बनी रहेगी तो फिर भी नो के कैसे सूरत हाल किस जानिब जाती है। साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम एंड फॉर योर एनालिसिस सर। आई होप कि कुछ ना कुछ जरूर हम इसमें से ले सकते हैं एज पर एक्सपीरियंस।